All right, guys, a very good afternoon to everyone. Once again, we are here with you for another webinar. तो अभी हमारी दो we started it as a webinar series, which eventually it was nothing planned, but it got split into two different types of webinars under this series. One is for the parents and by the parents, and the other one is by all the the very experienced, not just experienced but with very rich experience by the professionals. तो आज हमारी जो सीरीज है बाय द पेरेंट्स फॉर द पेरेंट्स में वी हैव नेहा with us, नेहा कुलकर्णी. Most of you here know who Neha is. Most of you know and you have read through Navneet's articles. कल परसों में नवनीत की book will be out in the market, and I'm also not me, I won't take the credit, but we actually Neha, me and another friend, उनको भी आप लोग जानते हो यहाँ पे, but I won't I'll keep her name as a surprise. We are planning to have Navneet uh, taking a webinar for us. But since Navneet expresses in writings, we will have to figure that out how best we can do that. But very soon we will do that. Yeah. So today we have Neha with us, and Neha will be talking. See, there is a lot that Neha can share with us because Navneet is now 15 years old, and I'm sure back then when Neha got the diagnosis, तब उतनी facilities, इतने support groups कुछ नहीं थे. So how, as a mother alone, she managed through everything and sailed through and has come out so beautifully, so beautifully. So I'm sure after this we would want Neha to keep coming, once in every month or maybe once in 2 months, however it works for her. But today she's here to talk about more about the teenage challenges and the activities of daily living जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा struggle करते हैं. If you have anything more you wish to know from Neha, please drop us a message. Neha is there on Segan Mantra's Telegram group also. Otherwise, personally also, you can message her. You can drop us an email, however you want. But whenever and however you want, just let us know. We'll definitely plan another webinar. So over to you, Neha. I'll put myself on mute and my camera off. Over to you, dear. Please take it up from here. So, good evening, everyone. Hello, nice to meet you. Today we are going to talk about the teenage challenges and some activities of daily living. In the teenage challenges, let's talk about talking with children about puberty. Puberty के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन और ओरल केयर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा इमोशन रेगुलेशंस कैसे एक में डेवलप करना चाहिए बच्चों में वो थोड़ा हाईलाइट डालेंगे उसके ऊपर और some ADL activities and some leisure activities we are going to include in this webinar. So let's coming to the point topic about the puberty. Talking with children about puberty. Actually, प्यूबर्टी के बारे में आप वर्ड एक प्रोनाउंस करेंगे बोलेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हेजिटेट ये करते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द प्यूबर्टी. अब थोड़े बड़े जब हो जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ सोच रहती है पेरेंट्स की. आई थिंक दैट प्री टीनेज में जब जितना हो सकता है उतना आप प्री टीनेज में आप प्यूबर्टी के बारे में बच्चों के साथ बात करेंगे तो उतना ही आपको इजी हो जाएगा जब when the kids enter the teenage age. सो जब बच्चे आपके 8 और 9 इयर्स के प्री टीन में है तभी से आपको शुरू कर देना चाहिए कि उसके बारे में बात करना. प्यूबर्टी मीन्स जब चाइल्ड एंटर्स टू अडोलेसेंस, अडल्ट जब स्टेज में पहुंच जाते हैं, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होता है टीनेज में
प्यूबर्टी में फिजिकल चेंजेस क्या क्या होता है, इमोशंस, मूड स्विंग्स होता है, एंगरनेस बढ़ जाती है बच्चों में, एंड लॉट ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होता है प्यूबर्टी में। वो सब आपको बच्चों को प्री टीन में ही सिखाना पड़ता है, so that they when they enter they will easily handle and they changes जो आप टीनेज पहुंचने के बाद आप ये टॉक्स शुरू करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू ऑल द नो दिस what are the changes, they will not easily accept the changes। जब आप छोटे हैं बच्चे तभी आपसे शुरू करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर देम टू नो ऑल, and they have the right to know about their body, what are the changes happens in their body, they have the right to know, and you have to be open with them and talk freely with them about the puberty, क्या क्या changes होता है। जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स ग्रोना शुरू हो जाता है, और थोड़ा वॉइस अगर है तो वॉइस में चेंजेस होता है, एंड देयर फेशियल हेयर्स स्टार्ट्स ग्रोइंग, एंड स्वेटिंग्स आना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होता है। ये सब आपको ऐसे सोशल स्टोरीज के थ्रू, नहीं तो कुछ ऐसे विजुअल कार्ड्स के थ्रू आपको सिखाना पड़ता है बच्चों को व्हेन दे आर इन द प्री टेन। सो कैसे हाँ ड्रेसिंग करना है, अनड्रेसिंग करना है, कैसे बाथरूम से बाहर कैसे आना है, प्राइवेट कमरे खुद को का दरवाजा बंद करके ड्रेस चेंज करना है, अनड्रेसिंग ड्रेसिंग सबके सामने नहीं करना है, ये सब पेरेंट्स पहले ही सिखाना पड़ता है बच्चों को। सो व्हेन दे व्हेन द when the parents should openly talk with the kids इसके बारे में। तो जो फिजिकल चेंजेस बॉडी में होता है वो क्लियर करना चाहिए बच्चों को। प्राइवेट पार्ट्स कैसे ये करना चाहिए, और कैसे चेंजेस ये होते हैं, और सेक्स एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा ओपनली डिस्कस करना चाहिए जब छोटे हैं बच्चे अभी से। गुड टच बैड टच के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ ओपनली बात करना चाहिए। तो क्या उनके साथ जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या होता है उनके साथ। So it's very important to discuss this matter with openly with the children when they are in the pre-teen only। जो when the child so he जो कुछ चेंजेस होता है बच्चों में, जो कैसे जब कोई घर में आए तो कैसे उनके साथ बात करना चाहिए, दूर से बात करना चाहिए, सिर्फ ओनली शेक हैंड करना चाहिए, और कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, नजदीक से ऐसे ये ज्यादा से ज्यादा फिजिकल टच ये नहीं करना चाहिए, वो सब सिखाना पड़ता है बच्चों को। और ये जो है सब प्री टीनेज में अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो इजी हो जाएगा कि बड़े होने के बाद कैसे ये करना है उसको बच्चों को। तो ये जो टीन एज में है ना बहुत मूड स्विंग्स होता है बच्चों का, सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट हो जाता है, दे फील शाई, स्टार्ट शाई ऑफ देमसेल्व्स का अगर कोई आए तो शाई फीलिंग होना, ये सब जो है ना वो सिम्टम्स है प्यूबर्टी के, जो आप उनके साथ ओपनली बात करना चाहिए एक्चुअली बच्चों से। जैसे ड्रेसिंग अंडर से आप गर्ल्स के बारे में आप अगर बात करेंगे तो जब व्हेन द गर्ल एंटर्स द गर्ल मैच्योर्स, उसके पहले आप 8-9 इयर्स में ही उनको अगर गर्ल्स को सिखाएंगे कि क्या क्या होता है चेंजेस, बॉयज में डिफरेंट चेंजेस होता है फिजिकल चेंजेस, और गर्ल्स में डिफरेंट चेंजेस होता है फिजिकली और बायोलॉजिकली चेंजेस। सो आपको गर्ल्स को भी सिखाना पड़ता है मेच्योर जब होते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या ट्रेन पेरेंट्स को माँ को करना है, कैसे मेच्योर होने के बाद क्या क्या चेंजेस आता है, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या है प्रोसीजर, कैसे हाइजीनिक रखना है बॉडी को, कैसे खुद को ये करना है प्रोटेक्ट करना है, और कैसे आप तो सेक्स बहुत सारे ऐसे सोशल स्टोरीज
विजुअल कार्ड्स के थ्रू गर्ल्स को एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में, मैच्योर होने के बाद क्या क्या चेंजेस होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं आप पेरेंट्स, स्पेशली मदर. So जब the when a child enters the teenage, if you are raising a child of a boy, then जो है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी एज अ पेरेंट्स दोनों को बांटनी पड़ती है. एज इफ यू हैव ए टीनेज बॉय, देन पापा की भी उतनी ही ड्यूटी होती है, उसको बेटे को देखना और उसको कैसे ट्रेन करना, हैंडल करना. जस्ट ही शुड स्टार्ट बीइंग एज अ बेस्ट फ्रेंड टू हिम. एक्चुअली गर्ल्स जो टीनेज में होते हैं, तो एज ए हमारा रोल जो जब हमारे बच्चे टीनेज में पहुंच जाते हैं, तो इट्स वी शुड नॉट बिहेव विद देम एज अ पेरेंट्स. जब हमारी ड्यूटी जो होती है एज अ खुल के हम लोग वी शुड बी लाइक ए गुड फ्रेंड्स टू देम, so that they can easily share with us each and every problem with us. सो हम लोग बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे खुल के बात करने के, ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहना पड़ता है बहुत. अगर हम स्ट्रिक्टनेस ऐसे ये करेंगे, ऑर्डर्स ये करेंगे, तो फ्रीली हमारे साथ बच्चे बात नहीं कर सकते हैं एक्चुअली. तो हम बहुत फ्रेंडली बिहेव करना पड़ता है बच्चों बच्चों के साथ जब वो टीन एज में पहुंच जाते हैं. तो पापा की ड्यूटी है, अगर इफ यू हैव रेजिंग ए बॉय चाइल्ड, इज अ टीनेज बॉय, देन पापा को पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना देना चाहिए उसके साथ. एक्चुअली धीरे धीरे मदर्स की ड्यूटी, जब टीनेज का बच्चा बॉय एज ए बॉय पहुंच जाता है, तो एज ए मदर मदर की ड्यूटी थोड़ा कम हो जाती है, पापा की थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाती है उस टाइम पे. इसकी वजह से जब बच्चा टीन एज पहुंचेगा, तब वेट मत करो. व्हेन योर चाइल्ड इज इन द प्री टीन एज, 8 or 9 years old, तभी से आदत पापा के साथ उसे घुल मिलने की, थोड़ा बाथरूम में क्या क्या थोड़ा मदद लग सकती है पापा की. फिजिकल चैलेंजेस, सब कई बच्चे ऐसे हैं कि खुद फिजिकली स्ट्रॉन्ग एबल रहते हैं, कर सकते हैं खुद की खुद को खुद से नहाना, खुद से ड्रेसिंग करना, अनड्रेसिंग करना पता रहता है. और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है, थोड़ा उनको ज्यादा मदद लगती है, बच्चों बच्चों को पेरेंट्स की मदद लगती है, पूरे इंडिपेंडेंट नहीं रहते. तब क्या होता है कि अगर आप पापा की थोड़ा ड्यूटी ले ये करेंगे लेंगे, तो इजी हो जाएगा उनके साथ एडजस्ट होने में उन्हें. एक्चुअली अभी जब टीन एज का बच्चा पहुंचेगा, तो अभी माँ के साथ ही चिपका रहेगा, तो पब्लिक प्लेसेस में अगर आप उसे लेके जाएंगे, जब जेंट्स और लेडीज के टॉयलेट्स अलग रहते हैं, सब आपको वो इजी ये हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब माँ नहीं रहती है उसके साथ, जब पापा को ही जाना पड़ता है उसे लेके टॉयलेट्स में वगैरह, कैसे ये करना है. सो अब व्हेन द चाइल्ड इज इन द प्री टी, तभी से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है. इफ यू हैव ए बॉय चाइल्ड, सो इट विल बी इजी फॉर देम. कोई तो कोई है, माँ के अलावा पापा भी है, उनको उनके साथ जो मुझे मदद जब लगती है, तो पापा है मेरे साथ, वो फील सिक्योर फील होना चाहिए बच्चों को. सो ये जो टीन एज है ना, बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही ये है. तब बहुत पेशेंसली हैंडल करना पड़ता है, सब सिखाना पड़ता है बच्चों को. क्या क्या फिजिकल चेंजेस तो होता ही है, क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, वो सब सिखाना ही पड़ता है. अलॉन्ग विद दैट गर्ल्स के तो ज्यादा ही सेक्स एजुकेशन देना पड़ता है उनके साथ. तो अभी तो सेक्स अब्यूजमेंट तो ज्यादा ही स्पेशल चाइल्ड के साथ क्या क्या होता है, खुद को पता ही नहीं चलता है कि खुद के साथ क्या हो रहा है, वो इजीली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते. when the child is alone in your absence, तो थोड़ा ज्यादा ही ये करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है अभी क्या क्या ये होता है, क्या क्या अलर्ट रहना पड़ता है, क्या क्या चेंजेस, क्या गुड टच और बैड टच के बारे में तो ज्यादा ही हमें खुल के बताना पड़ता है बच्चों के साथ. और जब टीन एज बच्चा
पहुंच जाता है, तो उनके साथ बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि खुद के इमोशंस को तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। कभी कभी कर सकते हैं बच्चे, वर्बली है, नॉन वर्बली है, कभी कभी कर पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं कि कर नहीं पाते हैं ये सब इमोशन एक्सप्रेस, इतने फ्रस्ट्रेट में हो जाते हैं कि when they are alone or in the public places, they started masturbation शुरू हो जाता है बच्चों में, they start taking the pleasure of the private parts and all. सो उसके उसको उन्हें सही तरीके से उन बच्चों को सिखाना पड़ता है कि कैसे ये करना है, सोशल नॉर्म्स सिखाना पड़ता है, एंड इट्स अ कॉमन फैक्टर, नॉर्मल है जो हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे, अवर किड्स आर स्पेशल किड्स, बट बायोलॉजिकल चेंजेस जो होता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में और स्पेशल सब एक ही जैसा रहता है। सब बायोलॉजिकल चेंजेस जो है ना स्पेशल चिल्ड्रंस में भी एक जैसा ही रहता है जो नॉर्मल चिल्ड्रंस में रहता है। तो बच्चों के साथ क्या क्या ये होता है, उसके बारे में भी इस प्राइवेट जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी कभी कभी टीनेज जो पहुंच जाते हैं, दे आल्सो टेक द प्लेजर ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, सेल्फ बैड स्टिमिंग वो करते हैं, पर इन इन कीपिंग द सोशल नॉर्म्स, इन करते हैं, दिखाई नहीं देता है पेरेंट्स को करते हैं, जब क्या करते हैं बच्चे, नॉर्मल बच्चे। तो स्पेशल किड्स के क्या हो जाता है, खुल के दिखाई देता है, हम ये क्या करते हैं, बिहेवियर जो है ना खुल के दिखाई देता है हमें। वो सब सोशल नॉर्म्स जो है ना वो सिखाना पड़ता है कि व्हेन यू आर टचिंग, व्हेन यू इफ यू वांट टू टेक द प्राइवेट, give the space for the kids to have the private time for that, but along with that we have to keep an eye on them whether it should not get to addiction of that, sexual pleasure, it means it gives the pleasure to them, and the most of the hormones actually scientifically हम लोग अगर बात करेंगे तो उनका जो है वो लोगों को गलत दिखता है, सही और गलत का कैसे ये जो है ना वो यूज करना चाहिए along with the social norms, वो सिखाना पड़ता है। और जो करते हैं वो बच्चे मास्टरबेशन, वो उनका जो है ना वो उनका राइट है, वो खुद के बॉडी पार्ट्स को समझना, कुछ खुद के बॉडी के पार्ट्स को समझ के फील करना, वो उनका राइट है। पर उसके अलोंग विद दैट you have to make the strict rule, and that in the public places we should not touch the private parts, and if you want to touch your private parts you should go in the bathroom or you should go in the bedroom, and it should not be the addictions, and ये तो क्लियर करना ही चाहिए आपके बच्चों के साथ। तो ये you should keep an eye on them, so it should not get addicted। ये जो प्लेजर जो है ना वो अगर आपके टीन एज में स्पेशली 15 और 16 के एज में जब आपका बच्चा पहुंचेगा तो वो प्लेजर थोड़ा ज्यादा ही होने लगती है कई बच्चों में, स्पेशल चिल्ड्रंस में तो ज्यादा ही लगती है, क्योंकि दे आर नॉट एंगेज्ड इन अदर फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस और एकेडमिक्स में दिन भर का जो रूटीन नॉर्मल बच्चों का रहता है वैसे थोड़ा हटके रहता है स्पेशल चिल्ड्रंस के। नहीं तो कभी कभी आइडल एंगेज टाइम टेबल शेड्यूल नहीं रहता है बच्चों का, पेरेंट्स ऐसे ध्यान नहीं दे पाते, दे सो इन दैट स्टेज दे विल कीप टेकिंग द प्लेजर ऑफ दैट, एंड तो और एडिक्शन ज्यादा होने लगती है। तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ध्यान टीनेज में तो वी हैव टू ऑब्जर्व देम, क्या देखते हैं वीडियोस, क्या ये करते हैं, क्या देखते हैं प्राइवेट टाइम, जब व्हेन दे आर अलोन एट द रूम क्या करते हैं, कितनी ठीक है प्राइवेसी अगर 10 5 10 मिनट्स इट्स ओके, हद से अगर ज्यादा बढ़ गई तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, टू मीन्स नॉट बाय स्टॉपिंग them to do that, but distracting their mind and taking them to doing other activities, it's very important। mind divert करके आप फिजिकल एक्टिविटीज में और कुछ काम में, घर के काम में कुछ ऐसे उनके साथ टाइम बिता के कुछ स्टोरीज के थ्रू आप अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो ये जो है ना धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, ये जो एक्ट बिहेवियर है थोड़ा कम हो जाएगा। और जब टीनेज में तो जैसे मैंने बताया कि जो फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके साथ
पर्सनल हाइजीनिक क्या ये रखना है वो भी बहुत जरूरी है। कैसे कि प्राइवेट पार्ट्स को कैसे हेयर्स ग्रो होने के बाद कैसे प्रॉपरली मेंटेन करना है, शेविंग ट्रिमर कैसे यूज करना है, प्राइवेट पार्ट्स को कैसे हाइजीनिक रखना है, वॉश जैसे क्लीन ये करना है प्राइवेट ये पार्ट्स को, जैसे नेल कटिंग है, शेविंग है, वो सब को के बारे में आपको बता ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को। जब आप बच्चे प्री टीन में है तभी आपको उसके साथ बात करनी चाहते हैं। जब पापा आप शेविंग करते रहते हैं, जब आप टीनेज में पहुंचेंगे तो आपके भी ऐसे ये हो जाएंगे, तब आपको भी ऐसे करना है ना। उसके साथ अभी 2 3 4 साल पहले आप ऐसे उनके साथ शेयर करेंगे ये सब, तो धीरे धीरे वो चेंजेस जो फिजिक बायोलॉजिकल चेंजेस है उसको यूज हो जाते हैं बच्चे धीरे धीरे। कुछ भी सीखने की भी जो कुछ हमारे अंदर चेंजेस हो रहा है इट्स अ नॉर्मल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। जो कुछ हमारे अंदर चेंजेस है वो सब में है, वो एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है बच्चों में। तो आपको धीरे धीरे जब पर्सनल हाइजीनिक के बारे में सिखाना पड़ता है, जब इफ इट इज अ गर्ल यू हैव टू टेल अदर मेंसेस के टाइम पे क्या क्या हाइजीनिक मेंटेन करना है, वो सब थ्रू जब एंटर हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब सोशल स्टोरीज के थ्रू ये इसके थ्रू नहीं तो प्रैक्टिकली भी आप उसे ट्रेन कर सकते हैं कैसे ये करना है। तो अभी तो इतना टेक्नोलॉजी सब बच्चे एक जैसे फिजिकल ये नहीं रहता है। कहीं कहीं बच्चे इजीली कर पाते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, फिजिकल एबिलिटीज रहती है, सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत होती है कई बच्चों को। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि फिजिकली उतना ये नहीं कर पाते, दे आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, दे स्टिल नीड द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। फिजिकली करने की ये रहती है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, कभी कभी कहीं ना कहीं तो थोड़े हेल्प लगती है पेरेंट्स की, तब उन्हें थोड़ा मदद करना ही पड़ता है आपके बच्चों को। जैसे कि अभी तो टेक्नोलॉजी इतना फॉरवर्ड हो गया है कि अभी इजीली आपको ट्रिमर शेवर वगैरह ऐसे मिल जाता है, इजीली वाइब्रेशंस भी कम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर मिलता है, एक सेट मिलता है शेविंग किट का, वो भी आप घर में इजीली कैसे हैंडल यूज करना है वो आप सिखा सकते हैं बच्चों को घर में। तो जो कुछ बच्चे अगर इजीली नहीं कर पा सकते तो मेंस पार्लर में जाने के बाद खुद के भी ट्रिमर कैरी कर सकते हैं, लेके जाके वहां पे दे के करवा के क्लीन करके आ सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे फिजिकल एबिलिटीज इश्यूज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़े। पर्सनल हाइजीन बॉडी को कैसे ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करना है वो तो मैंने बताया है आपको। तो क्या है डियोस वगैरह, कैसे स्वेटिंग आता है, स्वेटिंग आने के बाद कैसे ये करना पड़ता है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, डियो बॉडी हर 2 3 खेलने के बाद बाहर ग्राउंड में खेल के आने के बाद कैसे फेस वॉश करके खुद को बॉडी को कैसे हाइजीन रखना है, फेस वॉश करके बॉडी टाल्क यूज करना है, वो सब सिखाना पड़ता है बच्चों को वीकली। अगर आप ये सब ट्रिमिंग और हेयर कट ग्रूमिंग सब टेक्निक्स वीकली वंस अगर आप शेड्यूल रखेंगे तो इजी हो जाएगा, टाइम टेबल अगर आप रखेंगे तो इजी हो जाएगा बच्चों। एवरी संडे इज द हाइजीनिक टाइम, तब आप बच्चों को संडे, टुडे इज संडे मीन्स टुडे इज टेकिंग ऑफ द केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, हेड मसाज करना, हेड वॉश हेयर वॉश करना, शैम्पू यूज करना, नेल कट करना, और अंडर आर्म्स को क्लीन करना। संडे इज द ड्यूटी फॉर पर्सनल हाइजीन। अगर आप एक ऐसे टाइम टेबल रखेंगे वीकली वंस, जो है आज संडे है तो ये काम मुझे करना है, वो अगर आप शेड्यूल रखेंगे तो इजी हो जाएगा बच्चों को ये सब हैंडल करने में, इंडिपेंडेंटली हैंडल करने में इजी हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमोशन रेगुलेशंस के बारे में। इमोशंस जो है ना, मैं आपको कैसे बताऊं इमोशंस के बारे में। तो मेरे जब नवनीत व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, तभी से मैंने उसे इमोशंस कैसे है, इमोशंस के बारे में तो बताए बताया था उसे कैसे इमोशंस हैंडल करना है, इमोशंस लेबलिंग द इमोशंस, वो सब मैंने उसके साथ
खुल के बात किया था। रिसेप्टिव लैंग्वेज उसका अच्छा है, मैंने उससे बात किया था। बट हाउ टू शेयर द इमोशंस, हाउ टू हैंडल द इमोशंस, ये वी आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एक्साइटेड, ये जो है ना वो सब knowing the emotions and keeping and sharing our expressing and sharing our emotions and regulating the emotions is a very difficult task for the teenage child. when the teenage जब बच्चा पहुंच जाता है तो इमोशंस थोड़ा ज्यादा ही हाई हो जाते हैं बच्चों में, एंगरनेस तो बढ़ ही जाता है बच्चों का। तब जब मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। जब नवनीत छोटा था तब सिखाया था मैंने थ्रू गेस्टर्स एंड ऑल। ही वाज नोइंग ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस। जब 2 साल पहले जब व्हेन 1 साल पहले एक्चुअली, जब उसने टाइपिंग करके कम्युनिकेट करना जब से शुरू किया, इतना ये हुआ कि मुझे फर्स्ट थिंग व्हेन he used to communicate with me only for the basic needs. Then emotions, jab when I started asking questions about the emotions, about he told that when we started expressing his emotions and all, first thing he asked me was that I am different. I know somewhere I'm feeling that I am lacking. I feel that I am very different from others. Why God made me like this? I'm feeling. I feel that something is a problem in me. I feel very sad that I am not able to talk. Why I'm not talking? That was the first thing he expressed his feeling. Sad. I feel very sad about the way first he expressed his emotions were the only the all the negative things overflowed, all the emotions, bad emotions, इतना ओवरफ्लो हो गया, इतना कुछ था उसे। फ्रॉम ए टू 11-12 ईयर्स तक जो जब भी वो प्री टीनेज में था, उतना जो कुछ फील करता था पर कह नहीं पाता था, कभी कभी डिटेल में कह नहीं पाता था। जब से उसने कम्युनिकेशन टाइपिंग के थ्रू शुरू किया, इतने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे। ही वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी सैड, बैड इमोशंस तो इतना था उसके अंदर, इतना कुछ एक्सप्रेस करने लगा कि आई फील वेरी बैड दैट व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग, व्हाई आई एम लाइक दिस। नेहा प्लीज, यू आर टेकिंग ऑल द थेरेपीज एंड ऑल, you are taking oral massages, you're taking all the activities, and you're doing your best to help me, to make me verbal. But still, even I am trying to be verbal, even I want to speak, but don't know where I'm lacking. So please help me. God has made unfair for me. He started sharing. I feel sad. I feel very bad when people talk about my verbal communication. जब बच्चे जब लोग मेरे बारे में ऐसे ये कुछ योर चाइल्ड इज स्पेशल, आपके बच्चों को क्या, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को डॉक्टर ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, कैसे शुरू हुआ, क्या बर्थ प्रॉब्लम्स थे, क्या आप डिप्रेशन में थे, क्या इतने सारे प्रॉब्लम्स बाहर के बाहर। he was to deal with each and every day. He deal with some negative एनवायरमेंट एंड नेगेटिव, इतना कुछ भर गया था उसके अंदर। जब भी एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू गो आउट, ही वाज फीलिंग इतना कुछ बैड इमोशंस उसके अंदर भर गया था। उसके उस धीरे 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 उसको सब क्लियर करके उसको इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में इतना कुछ आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू मेक टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतना कुछ इन वर्बल कम्युनिकेशन, जब उसने बैड इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू किया, समटाइम्स फ्यू मंथ्स बैक सडनली इतना उठ जाता था बीच बीच में, 2 बजे 3 बजे रात को उठ के, आई एम फीलिंग वेरी स्केर्ड, आई एम फीलिंग वेरी आई एम वेरी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम फीलिंग वेरी फियर ऑफ योर डेथ, समथिंग। इतने कितने बुरे बुरे सपने आने लगे उसमें। Luckily, he shared all the bad emotions with me. That was the plus point for me, that I cleared him actually. Um,
इतना कुछ ऐसे ये करने लगा। जब रात को मैं बैठ जाती थी टैब लेके, नो बेटा, इट्स अ फियर, इट्स अ ह्यूमन, गुड इमोशंस आर बैड इमोशंस द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी हम हमारे अंदर कितने इमोशंस होते हैं बैड, कभी कभी बुरा सपना हमें भी आता है, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो बुरे सपने आते हैं, हमें कंट्रोल करके हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। See, you are not communicate, you have no verbal communication, but you can communicate with me. You know typing, God has given this opportunity, God has given this talent to you, you can express, but जो verbal बच्चे हैं, special kids है, बाकी के हैं जो they can speak but they cannot express their emotions in the manner you are expressing it. So आपके अंदर इतनी talent है, you are very expressive, and you're sharing with me each and every problem. That is the plus point. Let's see the what the skill is in you, then let's focus on that. मैंने उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, सब पॉजिटिवनेस भरते गई मैं उसको उसके अंदर। सो यू आर वेरी गुड इन communicating with me, you are very knowledge, you're talking with me so nicely, and you're expressing your emotions so nicely that other kids cannot do this. But you're started writing also. uh, अभी आपने छोटे छोटे deep imagination, the way you are imagination, the way you imagine, and the way you are talking with me like a mature child, no else can talk like this. Your brain is very super, and I cannot reach your level. Then ऐसे बात करके मैंने मोटिवेट किया उसे। धीरे धीरे उसके जो फियरनेस थे वो थे, उसको सब बैड इमोशंस थे वो सब क्लियर करते गई मैं, क्लियर करते गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बच्चों में टीन एज में, स्पेशली व्हेन दे किड्स रीच द टीन एज, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सीखा पेरेंट्स को से बहुत इजी सिखाना पड़ता है बच्चों को एक्चुअली। इतना कुछ नेगेटिव इमोशंस ही ज्यादा रहते हैं। हर दिन आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, टीचर के साथ कुछ ना कुछ होता है, बाकी फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ हुआ रहता है, घर में आके घर में भी कुछ ऐसे हुआ रहता है। हम लोग किसी से भी अगर हमारे बच्चों के बच्चे बच्चे के बारे में किसी और के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, मेरा बच्चा ऐसा है, ये खुद नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाते। अब व्हेन वी टॉक talking about when we talk about the child about his disability in front of others, सब सुन लेते हैं, इतना कुछ ऐसे हर्ट होने लगते हैं बच्चे, खुद के सब सहन कर लेते हैं, सहन करते हैं, पता है सहन कर नहीं पाते कभी कभी। इमोशनल बिहेवियर के फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और इसके थ्रू एंगरनेस के थ्रू सब बाहर आ जाता है। दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस इन द रॉन्ग मैनर। हम जब भी हम लोग बच्चे बच्चे के बारे में कुछ ऐसे बात करते हैं तो प्लीज प्लीज बी अलर्ट, बी कॉन्शियस दैट इफ हम कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने कुछ उसके बारे में नेगेटिवली और उसके प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में उसके सामने मत कीजिए आप। एक्चुअली मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से एक्चुअली। द वे ही वाज सफरिंग एंड ही वाज एक्सप्रेसिंग, जो कुछ इमोशंस वो शेयर किया ना, वो उसकी पेन नहीं है, मुझे उसकी पेन जो है ना सब स्पेशल बच्चों में दिखाई देता है एक्चुअली। ये इतना एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो कुछ बाकी के बच्चे नहीं कर पाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, ये नहीं है। सिर्फ हमें हेल्प करना है कि वो जो इमोशंस है, फीलिंग्स और इमोशंस है, कैसे बाहर लाना है, उसके लिए आपको मदद करना चाहिए बच्चों के साथ। और अभी तो इतना सेल्फ नेहा मैम, कॉन्फिडेंस उसका। हाँ यश, sure। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? थोड़े क्वेश्चन तो ये सब अभी हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा लास्ट 15 मिनट्स वी कैन टेक द क्वेश्चंस इफ ओके, यू ठीक, थैंक यू। ओके। कैन आई कंटिन्यू? प्लीज। तो हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो बच्चों के साथ हर एक सोसाइटी में अगर बाहर जाने के बाद इतना कुछ ऐसे डील करना पड़ता है बच्चों को कि खुद को जब टीनेज में बच्चे पहुंच जाता है तो ही कम्स टू नो दैट ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चाइल्ड। कई के उनके बाकी लोगों के बिहेवियर से, बाकी बच्चों फ्रेंड्स के बिहेवियर से,
कुछ ना कुछ ऐसे पता चल ही जाता है कि वो डिफरेंट है, उनके बच्चे स्पेशली हम डिफरेंट है, सबके साथ सबकी तरह नहीं है, वो पता चल जाता है टीनेज में जब बच्चा पहुंच जाता है तो उस टाइम पे आपको बहुत सपोर्टिव बनना है बच्चों के साथ, एज ए नॉट एज ए पेरेंट्स, एज ए गुड फ्रेंड। आपको हर हाल में उनके साथ whether whatever the ups and downs comes in their life, in the हर हाल में आपको उनके साथ सपोर्ट करना पड़ता है बच्चों के साथ। अगर कोई अगर आप उसे लेके बाहर गए तो पब्लिक प्लेसेस में, अगर आप कोई आके आपको ए बच्चा क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है, कुछ अगर कोई पूछे आपसे, तो आप ये कर दीजिए, आप उतना ये मत लीजिए, इग्नोर कर दीजिए ज्यादातर। है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसके साथ, अभी जो टीनेज में बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव आ गए हैं हमारे बच्चों में। बहुत था पहले प्रॉब्लम, अभी बहुत ये हो रहा है। ऐसे उनके साथ ऐसे थोड़ा बहुत ये कम्युनिकेट ये करके बोल के खत्म कर देना चाहिए वो मैटर। जब भी आपके साथ अगर आपका बच्चा है, उनके साथ लोग अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर आपके इमोशंस जब भी हम लोग ऐसे हो गया है अभी जनरेशन कि इमोशंस के ऊपर ज्यादा काम ही नहीं कर रहे हैं अभी पेरेंट्स। इतना को सुबह उठो, ब्रश करो, ब्रेकफास्ट करो, होमवर्क करो, बैग लो, स्कूल बस आ गया है, पकड़ो, थेरेपी लो, घर आओ, फिर फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, थेरेपी लो। इतना शेड्यूल, इतना फिजिकल एक्टिविटीज, इतना ये हो गया है कि कभी भी ऐसा पेरेंट्स को नहीं लगता है कि ठीक है आप सो के उठा है, गुड मॉर्निंग हुआ है, ठीक है बेटा, आप कैसी नींद कैसी हुई आपकी, अच्छा नींद अच्छी हुई, कुछ ये हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, बुरा सपना आया, आपको कैसी नींद हुई आपकी। इमोशंस, बच्चों के इमोशंस के बारे में कुछ सुबह सुबह बात ही नहीं हो पाती है। सुबह उठने के बाद एक्टिविटीज ऐसे हो गया है कि बच्चों को रोबोट बना रहे हैं हम। हाँ, काम करो, ये करो, वो करो, सब जब स्कूल से बच्चा आता है तो खाने की गड़बड़, कुछ फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, कुछ होमवर्क करो। अगर बच्चा स्कूल से आ गया तो कैसा दिन गया, कैसे फ्रेंड्स के साथ कैसी रही आपकी आज का दिन, टीचर ने क्या कह लिया आपको, कैसे ये हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुआ। अगर आप लोग खुल के उनके साथ अगर ये सब मैटर शेयर करेंगे तो धीरे धीरे उनके जो गुड इमोशंस रहने दो, बैड इमोशंस रहने दो, दे विल कम फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस फ्रीली विथ यू ईच एंड एवरी। यू हैव टू बी, जैसे मैंने बताया कि आपको इमोशंस के बारे में ज्यादा ही वर्क करना पड़ता है जब टीनेज में आ जाता है तो जैसे आप बच्चा उसके प्रॉब्लम्स को स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके साथ फ्रेंड्स ने क्या बात की, उनसे कैसे ये गया, आप लोग खुल के अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे भी आपसे खुल के प्रॉब्लम्स क्या हुआ है वो इजीली शेयर कर सकते हैं आपके साथ, खुल के बात कर सकते हैं आपके साथ। तभी आप जब बच्चा उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को इजीली आपके साथ शेयर करेगा, तब 80% ऑफ द इमोशंस, बैड इमोशंस जो कुछ है ना, स्ट्रेसनेस, एंगरनेस, जो कुछ फ्रस्ट्रेटनेस हो जाता है बच्चों में, वो सब धीरे धीरे खत्म सॉल्व हो जाता है बच्चों में। अगर आपको मैंने जब नवनीत ने मुझसे इमोशंस शेयर करना शुरू किया, तब हम लोग एक गेम की तरह खेलते थे इमोशंस के बारे में। सो टुडे आई विल आस्क द क्वेश्चंस अबाउट माय इमोशंस एंड यू हैव टू टेल हाउ आई फील, and next day you ask me about I will ask about your emotions, and you tell the answers, question answers के थ्रू, ऐसे गेम के थ्रू हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली करते थे गेम्स की तरह। इसके थ्रू मुझे सब पता चल गया कि उसके इमोशंस, ही नोज टू नॉट ओनली नोइंग आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, सामने पेरेंट्स के भी इमोशंस क्या होते हैं, जब सैड होते हैं क्या होता है, व्हेन सब दे शुड नो टू रीड द इमोशंस ऑफ अदर्स आल्सो एंड हैंडल द इमोशंस। मेन when mama is tired, mama is sick, बच्चा सैड हो जाता है, I feel very bad, I'm feeling very sad today because mama is sick, mama sick है। when he comes to you and share this you're sick, then आपको ऐसे बताना है कि ठीक है,
I am sick, but within 2 days I will be normal. And sick problem में sick होना, कभी कभी सर्दी, ये फीवर आना, सर्दी कोल्ड होना, ये सब फिजिकली जो माइनर प्रॉब्लम्स है सब में होती है, 2-3 में वो चला जाएगा. सो इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 days, देन वी विल बी नॉर्मल. ऐसे आप सैड है, वी आर सिक, इसकी वजह से मैं सैड हूँ, जब बच्चा ऐसे बताता है तो आपको ऐसे इमोशंस को क्लियर कैसे करना है, ये आपको देखना पड़ता है एक्चुअली. हाँ, तो ईच एंड एवरीथिंग कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो वो सब अब अगर एंगरनेस है, आई एम वेरी एंग्री टुडे दैट समथिंग हैज हैपेंड, आई बिकॉज आई एम एंग्री टुडे बिकॉज टीचर स्कूल्ड मी, आई एम एंग्री, आई एम सैड टुडे, सम अदर फ्रेंड्स scolded me, teased me. If a child comes and talks freely about this, आपकी ड्यूटी बनती है कि ठीक है वो सैड है तो हम लोग बात करेंगे क्या हुआ है, उनको फ्रेंड्स के जो कुछ आपके फ्रेंड्स टीज कर रहे हैं उनको जाके हम बताएंगे कि क्या सॉल्व कर लेंगे ये प्रॉब्लम. अगर आप ऐसे रिलैक्स उनको दिलासा दिलाएंगे तो जो है ना बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटनेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है बच्चों में. तो आपको जो है टीन एज में बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली बहुत पेशेंस रखना है, बहुत फ्रेंडली आपको उनके साथ रहना है. अगर आपका टीनेज बच्चा है तो ज्यादा एज ए फादर के मैंने बताया कि फादर की ड्यूटी ज्यादा ये हो जाती है, उनके साथ थोड़ा कभी कभी लीजर टाइम में उनको लेके बाहर जाना, उनके साथ विदाउट मम्मा ओनली फादर एंड सन, उनकी जो रिलेशन बॉन्डिंग है ना वो थोड़ा धीरे धीरे टीन एज में फादर एंड द सन बॉन्डिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग, बॉन्डिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए ज्यादा. एंड एज अ मदर एंड अ गर्ल, इफ ए टीनेज गर्ल इज देयर, उनके साथ जो है ना ज्यादा अटैचमेंट रहना चाहिए बच्चों के साथ. तो जैसे इमोशंस के बारे में मैंने बताया, अभी तो इतना ये हो गया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना भर गया उसके अंदर. जब भी मैं चिड़चिड़ करती हूँ, जब भी मैं ये होती हूँ, कभी भी मैं गुस्से में कभी कभी आ जाती हूँ, तो ही कम्स एंड टेल मी दैट यू प्लीज कंट्रोल योर एंगर, डोंट लूज योर एनर्जी इन इन शोइंग द एंगरनेस. एंड जब भी इतना कुछ उससे मेच्योरिटी आ गया है कि नॉट ओनली ही शेयर अबाउट हिज इमोशंस, जो कुछ भी फिजिकल चेंजेस प्यूबर्टी के क्या ये होते हैं उतना ही नहीं, जो गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब साइंटिफिकली वो भी शेयर करता है मुझसे वो. एक्चुअली मुझे वो अभी इतना सब क्लियर बैड इमोशंस के कैसे इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है जब वो मैंने सिखाया, उसके बाद अभी इतना कुछ उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर गया है कि मुझे ही वो अभी वो सिखा रहा है, वो मेरा गुरु बन गया है अभी एक्चुअली. कभी कभी तो इतना ये करता है कि यू बी काम, यू डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ मी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम ट्राइंग टू बी फुल्ली इंडिपेंडेंट नाउ. ऐसे मुझसे मुझके साथ मेरे साथ बात करता है, दिलासा दिलाता है मुझे. सो आपके बच्चों के साथ भी आप जब प्री टीन एज में आप अगर ऐसे कुछ बॉन्डिंग रखे, उनके साथ इमोशंस और वो सब शेयर करेंगे तो आपकी टीन एज में आपके बच्चों को हैंडल करने में बहुत इजी हो जाएगी. सो हम लोग क्वेश्चंस लास्ट 15 मिनट्स में लेंगे. अभी next we'll come to the ADLs actually. We'll just let's talk about the activities of daily living. So टीनेज प्री टीनेज में और टीनेज में कैसे आपको बच्चों को एक्टिविटीज डेली लिविंग एक्टिविटीज में एंगेज करना है. तो it depends upon your the child's physical abilities. आपके फिजिकल एबिलिटीज कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या काम कैसे काम हाउस होल्ड एक्टिविटीज के काम में कैसे आपको आपके बच्चों को एंगेज करना है. तो व्हेन द चाइल्ड इज इन द प्री टीन, तभी से आपको हाउस होल्ड छोटे मोटे कामों में आप एंगेज कर सकते हैं. देर आर द लॉट ऑफ थिंग्स प्री एकेडमिक्स
जो है फंक्शनल एकेडमिक्स जो है आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज के थ्रू इतना कुछ सिखा सकते हैं, इतना कुछ है सिखाने में, कुछ टेबल टॉप, और इसकी ही जरूरत नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शनल एकेडमिक्स सिखाने में एक्चुअली। जब प्री टीन एज है बच्चा बच्चा तो किचन के एक्टिविटीज में उसे एंगेज करो, जैसे कि वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड सॉर्टिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कीपिंग इन द फ्रिज, और जो क्लॉथ्स को क्लिप्स अनक्लिप्स कैसे ये करना है छोटे, जब व्हेन द चाइल्ड इज इन 8 और 9 years ओल्ड, 7 or 8 years ओल्ड, तभी से आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं बच्चों को। जैसे कि बाहर से कपड़े सुखा के ये आने के बाद बाहर के से कपड़े लाके फोल्ड करके कबर्ड में कैसे रखना है, खुद के कपड़े सेपरेट सॉर्टिंग कैसे करना है, पापा के कपड़े, मम्मी के, और खुद के कपड़े कैसे अलग अलग से कंपार्टमेंट में रखना है, डर्टी कपड़े यूनिफॉर्म्स जो है ना, डर्टी कपड़े जो है वो लॉन्ड्री बैग में कैसे ये करना है। डेली रूटीन के जो है ना छोटे मोटे कामों में आप बच्चों को एंगेज कीजिए, जैसे कि अगर फिलिंग द बोटल्स एंड ऑल, बाहर से अगर दूध वाला है तो दूध लेके अंदर रखना, वेजिटेबल चॉपिंग, अगर आपकी फिजिकल, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, कैसे काम किचन के काम में कैसे आपके बच्चों को एंगेज करना है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एबिलिटीज। कई कई बच्चे हैं इजिली कर पाते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज, सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे कि कई कई बच्चों को हैंड प्रॉम्प्ट सिखाना पड़ता है कि ऐसे करना है। तो फिजिकल एक्टिविटी कभी कभी अगर आप बच्चे टीन एज के बच्चे हैं तो उनको चॉपिंग, वेजिटेबल्स चॉपिंग, अगर नाइट से नहीं कर पा रहे, इजीली नहीं हो रहा है, तो आप वेजिटेबल, अभी तो इजी मार्केट में इजीली अभी मिल जाता है, वेजिटेबल चॉपर्स, ड्राई फ्रूट्स कटर्स, वेजिटेबल चॉपर्स, वो सब मिल जाता है। उनके साथ उनको काम पे नहीं लगाना है, उनके साथ उनको आपके काम में उनको लेके आपको करना है, जस्ट वे डू एक्टिविटीज अलॉन्ग विद हिम। आप उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है, उनके साथ मिलके आपको भी चॉपिंग करना है वेजिटेबल्स, और बहुत कुछ है। आप जो भी एक्टिविटीज घर के कामों में आप एंगेज आपके बच्चों को करते हैं तो बहुत कुछ है सिखाने में। अगर आप when you're giving a child to chop the vegetable and means it's you're preparing for the meal, whatever you're taking vegetables, कुछ भी आप स्पेशल बना रहे हैं तो वेजिटेबल चॉप्स के let's we are chopping the vegetable this and we are preparing this for making पालक पनीर। सो कुछ भी हो आपके रेसिपी, जो कुछ बनाने के लिए आप उनके बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में, रेसिपी के बारे में बात करो, आप वेजिटेबल्स के बारे में बात करो, अबाउट द हेल्दीनेस न्यूट्रिशन ऑफ दैट फूड। अभी आपको टमाटो ऑनियन कट कर रहे हैं तो ऑनियन क्या ये होता है, उसकी कैसे ग्रोथ ये करते हैं, ऑनियंस कैसे हो जाता है, उसके टॉपिक आपके बात करते करते अगर काम करेंगे तो वो जो टास्क है वो भी ये हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा बच्चों को क्या क्या है। तो घर के कामों में आप अगर घर के काम के बारे में अगर बात करेंगे तो मॉपिंग, डस्टिंग है, उसके आप एंगेज कर सकते हैं बच्चों को, खुद सिखा, ऑर्डर नहीं, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देना नहीं है ये करो वो करो, तो आप बेटा ये अब आप डस्टिंग करो, मैं मॉपिंग करूंगी, सब मिलके घर में काम करना है। इट्स आवर हाउस एंड टू क्लीन हाउस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल द फैमिली मेंबर्स। सो आपको पापा को भी इन्वॉल्व होना है, मम्मी को भी इन्वॉल्व होना है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। अगर आपको रोज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एंगेज द चाइल्ड इन द डेली डेली इनका शेड्यूल तो स्कूल जाना, होमवर्क करना, इतना बिजी रहता है, एटलीस्ट एवरी संडे तो आप ऐसे रूल रख सकते हैं कि आज संडे है तो क्लीनिंग डे है, हम लोग आप आज सब मिलके ऐसे क्लीनिंग, घर पे क्लीनिंग करेंगे। तो आप डस्ट मॉपिंग करूँ, मैं डस्टिंग करूंगी, जो मैं कार वॉश करूंगा, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर शेयर करके आप ये करेंगे तो बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं बच्चों को। अभी मेरा नवनीत को तो खुद उसकी ड्यूटी है, कई कई जो
थोड़े घर के काम के जो एक्टिविटीज है उसी को ही करना पड़ता है अभी, उसी को ही करना है। मैंने उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया है उसे। सुबह सुबह उठ के लैच ओपन करना, गेट की लॉक ओपन करना, और पेपर लाके घर अंदर रखना, और दूध लेके आना, डस्टबिन गाड़ी आने के बाद डस्टबिन में क्लीन करना, वो सब छोटे मोटे बाहर से कपड़े लेके घर में आना, अंदर फोल्ड करके रखना, ये सब जो छोटे छोटे जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मैंने उसे देख के रखा है। सो जब जब हम लोग घर के एक्टिविटीज में अगर बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि अगर व्हेन वी आर ट्रेनिंग ए बॉय चाइल्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ द घर, इस ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पापा भी करते हैं कि नहीं घर के काम। अगर हम लोग ये रूल सिर्फ बच्चों को ही लगा रहे काम करने के लिए, whether you have they are very observant. If you are keeping the rule to work at the household activities, then why it is not applied for the pay fathers also. So ऐसे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ठीक है पापा भी कर रहे हैं, मम्मी भी कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं घर का काम। ये थोड़ा दिमाग आना चाहिए बच्चों को। तो अगर आप घर के छोटे मोटे कामों में अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो अभी टीन एज में एज तो ऐसे ही नहीं रहता है। आफ्टर व्हेन यू रीच द एज ऑफ 35 40 इयर्स 50 इयर्स, जब आपकी उम्र हो जाती है तो द चाइल्ड शुड बी इंडिपेंडेंट टू हैंडल हिमसेल्फ। खुद के चाय बना के पीना, खुद को शरबत जूस बना के पीना, खुद के अगर सेल्फ जो है काम इंडिपेंडेंटली वो कर इजीली कर पाना चाहिए। इसकी वजह से ये मेन गोल जो है ना वो इसकी वजह से हमारे बच्चों को हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ता है सब एक्चुअली। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लीजर टाइम्स एक्चुअली। हर दिन में अगर इतना शेड्यूल बिजी रहा तो लीजर टाइम में आप अगर एटलीस्ट हाफ एन आवर तो बच्चों के साथ जस्ट एक्सप्लोर या किड टू द बाहर के एनवायरनमेंट से आप एक्सपोज करो बच्चों को। एटलीस्ट डेली हाफ एन आवर इवनिंग टाइम जब बाहर खेलना, फिजिकल एक्सरसाइजेस, बाहर साइकिलिंग करना, उनको लेके गार्डन जाना, आधे घंटे के लिए तो रोज ये फिजिकल एक्टिविटीज में तो लीजर टाइम आधे घंटा 1 घंटा तो एटलीस्ट 1 घंटा तो रहना ही चाहिए बच्चों को। एक रूटीन ऐसे टाइम टेबल बनाओ कि लीजर 6 to 10 आफ्टर डूइंग होमवर्क, 6 to 5 to 6 इज द लीजर टाइम। सो इसके अंदर आप हाफ एन आवर में बच्चों को एक्सरसाइजेस वगैरह ले सकते हैं। नहीं तो एक्सरसाइजेस ले सकते हैं, नहीं तो फिजिकल एक्टिविटीज, बॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लगोरी, वो सब जो है ना अलग अलग रोज एक अलग अलग प्ले एक्टिविटीज खेलो बच्चों के साथ आधे घंटे का। अगर आपके बच्चों में जो म्यूजिक का स्किल है पसंद है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उसके इफ ए चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, लेट्स कीप एनकरेज देयर स्किल। अगर म्यूजिक क्लास लगाओ आपके बच्चों को, जो म्यूजिक से इतना कुछ मेंटल स्ट्रेस और इतना कुछ इमोशंस बैलेंस होता है म्यूजिक से। खुद के एक्सपीरियंस और मेरे बच्चों जो कुछ ऐसे बात करता है नवनीत के सेंसरी के बारे में अभी जो लिख रहा है, ये कर रहा है, म्यूजिक का इतना कुछ रोल है। स्पेशली सबके लाइफ में तो म्यूजिक से तो बहुत फर्क पड़ता ही है। एक्चुअली इन बच्चों में कितना कुछ इफेक्ट होता है म्यूजिक का। ये कुछ जब आप नवनीत के राइटर्स देखेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको कि कितना रोल है म्यूजिक का। ऑटिज्म के बच्चों के रिलेटेड इतना कुछ इफेक्टिव इम्पोर्टेंट रोल है म्यूजिक का एक्चुअली। आपको पता ही चल जाएगा जब आप उसका राइटर्स और बुक्स देखेंगे तो। म्यूजिक में अगर आप कुछ ना कुछ अब अगर छोटे एज में आपके बच्चों को ऐसे इंटरेस्ट बढ़ा दो आप
एक्चुअली। उनके अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उनके डेवलप करो इंटरेस्ट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाने की, फाइन मोटर एक्टिविटीज भी हो जाती है, और उनका जो है ना दिन भर जो कुछ थकान जो ये रहता है ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं बच्चों को। जब अगर आपको म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स कुछ प्ले करने की, म्यूजिक सुनने की अगर आदत आप डालेंगे तो बहुत बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपके बच्चों में। ये मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, मेरा और मेरे बेटे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि आपको म्यूजिक में तो इन्वॉल्व करना ही पड़ता है आपके बच्चों को। सो लीजर एक्टिविटीज में आप उनके स्किल्स के जो कुछ स्किल है उनके अंदर, वो बाहर लाइए आप। ड्राइंग में कभी कभी कई बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, कई कई बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट रहती है, जो यू कीप द डेली आप 1 घंटा लीजर टाइम में वो आप उनके जो कुछ पर्सनल स्किल है उसके लिए थोड़ा रोज का 1 घंटा टाइम रहना देना ही चाहिए आपको। एक टाइम टेबल बनाइए उनके पर्सनल स्किल को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब जो है ना, वीकली डेली लीजर टाइम अलग है, वीकली लीजर टाइम अलग है। आप एवरी संडे इन नहीं तो एटलीस्ट 15 डेज में एक बार तो उन्हें लेके बाहर जाइए, मॉल में जाइए। इफ चाइल्ड इज ए टीन एज, अगर कुछ एडवेंचरस फिल्म्स वगैरह हो तो उसे लेके जाइए आप थिएटर में दिखाने के लिए। जब संडे ऐसे नहीं है, इफ सेंसरी इश्यूज अगर आपके बच्चों में है तो डोंट चूज फॉर द वीकेंड्स, वीकडेज में आप उन्हें लेके जाइए। क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, टिकट के काउंटर में कैसे वेटिंग करना है, वो सब आप सिखा सकते हैं बच्चों को। लेके जाइए फन लीजर टाइम जो है ना, हॉर्स राइडिंग्स वगैरह रहता है। मॉल से मैं तो ज्यादा नेचुरल जो है ना एनवायरमेंट से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए बच्चों को, rather than the going to the malls and वीडियो गेम्स वगैरह, लाइटिंग, इतना कुछ ऐसे सेंसिटिविटी ये हो जाती है बच्चों को। उससे इट्स बेटर टू एक्सप्लोर योर किड्स टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। आउटिंग्स पे जाइए महीने में एक बार, नहीं तो आप अभी तो पॉसिबल नहीं है कोविड के सिचुएशंस के वजह से, तो भी नहीं तो इवनिंग टाइम अगर अब तो पॉसिबल नहीं है, तभी आप लीजर एक्टिविटीज में बच्चों को गार्डनिंग का काम सिखाइए। जैसे प्लांटिंग करना है, जैसे प्लांट्स ग्रो करना है, जैसे क्लीन ये करना है, पानी कैसे, हाउ टू वाटर द प्लांट्स, जैसे कटिंग्स करना है, जैसे बहुत सारे सेंसरी एक्टिविटीज भी हो जाते हैं। जब नेचर के साथ जितना एक्सप्लोर होते हैं बच्चे, उतना ही उनके जो है ना एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह रिलीफ हो जाते हैं बच्चों को। इवनिंग जो है ना लीजर एक्टिविटीज में अगर आप ऐसे एक्टिविटीज में बच्चों को एंगेज रखेंगे तो बहुत बहुत बिहेवियर में बहुत बहुत उनके जो इमोशंस है ना उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा आपके बच्चों को। जो अभी मैं हम बात करते हैं कि रात को जब दिन भर में जो कुछ ऐसे बैड, अगर दिन अच्छा नहीं गया तो भी आप बच्चों को रात को जब सोने से पहले 1 घंटे पहले आप कुछ ऐसे सूदिंग म्यूजिक्स लगाइए। इफ द चाइल्ड हैज एनी फ्रस्ट्रेशन, फर्स्ट ही शुड रिलैक्स, ही शुड प्रिपेयर फॉर द स्लीप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग सोने के लिए जाते हैं, हमारी इमोशन स्टेटस कैसी है, हम लोग कैसे मूड में है, कैसे ख्याल दिमाग में आता है, उसके ऊपर हमारी स्लीप इफेक्ट होता है एक्चुअली। हम लोग अगर रिलैक्सली सोते हैं तो नींद अच्छी आती है। अगर आप टेंशन में कुछ ऐसे बात से फ्रस्ट्रेट होके अगर हम लोग सोते हैं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं हमारे बच्चों में। इट अप्लाइज टू देम ऑल्सो एक्चुअली, इसकी वजह से आप अगर बच्चों को ये हैबिट लगाएंगे, डेली बेड नाइट स्टोरीज आप आधे बच्चों सोने से 1 घंटा पहले ही आप अगर उनके साथ ये करेंगे स्टोरीज, रोज एक स्टोरीज सुनाइए, सोशल स्टोरीज। जैसे कि आप जब भी आपका बच्चा अगर टीन एज है तो बहुत सारे ऐसे ऑटिज्म बच्चों के भी स्टोरीज है, पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज है, उन्हें आप बता के सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं बच्चों में कि ये बच्चा ऐसा था, ये इतना सक्सेस होके ऐसे आया है, बट व्हाई नॉट यू, यू कैन आल्सो डू दैट, यू हैव दैट पोटेंशियल।
ऐसे हम लोग ऐसे सक्सेस स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज के थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए बच्चों में। अगर म्यूजिक सुनते सुनते अगर हम लोग सो जाते हैं तो इतना कामनेस आ जाता है बच्चों में, बुरे बुरे सपने भी नहीं आते हैं। अगर रात पूरा, इफ यू गेट द प्लेजर नाइट, sound sleep at night and the next whole day will be very fresh। रात को हम लोग कैसे सोते हैं, किस हाल ऐसे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल लेके सोते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है स्लीप कैसा रहता है हमारा। जब हम लोग रिलैक्सली ऐसे सोते हैं तो नेक्स्ट डे विल बी द वेरी, जो दिन भर एक्टिवनेस रहता है काम करने के लिए। अगर बच्चा कुछ ऐसे टेंशन में अगर सोता है तो पूरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, रात को उठ के फिरते रहते हैं, इसके फेयरनेस रहता है बच्चों में, बुरे बुरे सपने भी आते हैं एकदम से। कई कई बच्चे बोल सकते हैं कि ऐसा आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज फेयरनेस, बट जब भी ऐसा नहीं कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ रात को उठ के फिरते हैं, उन्हें बुरा सपना, कुछ दिमाग में ऐसे फ्रस्ट्रेटनेस नहीं है, ऐसा नहीं कह नहीं पाते वो बच्चे, पर रहता है वो सब दिमाग में, कुछ भी बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ऐसे टीनेज में तो ज्यादा टीनेज में तो नेगेटिव थॉट से ज्यादा आने लगते हैं। हमें उसे बैलेंस करके उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके पॉजिटिवली उनके जो थिंकिंग्स है उसे डेवलप करना पड़ता है हमारे बच्चों में। So emotion regulations is very important. Please, if your child is in the teenage, so आप please emotional regulations के ऊपर बहुत काम कीजिए। तो आपकी लाइफ आगे जाके when he enters the 20s and 30s, it will be very easy for them to self regulate। इजी खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो ये है ना, वो खुद अपने आप ही आ जाएगी उसमें। बट whenever my son tells me that I was sad yesterday, I felt very bad, I felt sad, but then I distracted my mind and thought and started thinking about the positive things, about the upcoming, my books are coming out, and I started thinking about the positive things, then my sadness went off। जैसे खुद हैंडल सेल्फ रेगुलेशन आ जाता है बच्चों में, अगर धीरे धीरे से पहले से आप का बॉन्डिंग अच्छा रखेंगे तो धीरे धीरे बड़े होने के बाद सेल्फ रेगुलेशन की कैपेसिटी आ जाती है बच्चों में। आई थिंक इट्स 5 o'clock, अराउंड 5 to तो हम क्वेश्चंस लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे नेहा, आपने इतना अच्छा, मतलब एक वो कहते हैं ना कि आपके साथ बस बहते चले जा रहे हैं हम लोग, आप बोलते जा रहे हो, हम सुनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस ये नेवर एंडिंग चलता रहे। आई थिंक नहीं, hope because I don't get it. No, not at all. In fact, I keep emphasizing this a lot to all the parents, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए मेरे से connected हो, that we have to work on our children's emotions first on the emotional understanding, then emotional expression, and automatically with time, patience and practice, emotional regulation will also fall in place. So yes, definitely we can go ahead with some questions, maybe 15 minutes, and there were a lot of questions that came in the forms, Neha, which I'm sure वो आपने अपने talk में you have covered it up already, है ना? Yes, हाँ हाँ, वही कहने वाले थे, जो कुछ थे ना प्रॉपर नाम। Just one thing, हाँ, I will just need a minute's pause so that I can stop this recording. This we will put it up on the YouTube. उसके बाद you can put your camera on and that recording maybe we can I'll give it to you, फिर आपको जिससे share करना होगा आप वहाँ करिएगा, and if you feel comfortable आप कैमरा ऑन कर लीजिए। तो इस 1 मिनट मुझे दीजिए पहले, I'll let you know when to put the camera on. Just give me a moment. Sure. Yeah.